Hello and welcome to MBBS Adda. We are back with our very unique series, the MCQ series of Rojgar Nirman. So this is the lecture 2 of the history portion of the Rojgar Nirman MCQs. As I've told you in the very first lecture that there is a high probability that these questions would be asked in examination. So we have brought this second series. So please stay tuned with us till the last of this video. So the very first question which can be found from here is who publishes Rojgar Nirman, which is the agency of Madhya Pradesh government which is publishing Rojgar Nirman. So there is a specialized agency called as MP Madhyam, Madhya Pradesh Madhyam. So this is the publishing agency of Rojgar and Nirman newspaper. So let's now begin with our question series. So the very first question: when was the slave dynasty established? 1206 AD, 1208 AD, 1230 AD or 1209 AD? तो स्लेव डायनेस्टी वॉज स्टैब्लिश इन 1206 एडी. अब इसको स्लेव डायनेस्टी या इसको इल्बारी डायनेस्टी भी कहते हैं क्योंकि दी इनिशियल रूलर्स बिलोंग टू द इल्बारी ट्राइब. और स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं? जो सबसे पहला रूलर था एबक वॉज स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी एंड द सेकेंड रूलर इल्तुतमिश वॉज स्लेव ऑफ एबक. एंड further when you will see Balban, so Balban was what? The slave of Iltutmish. So you will see three slaves who were the rulers of this dynasty. That is why it is called as slave dynasty. और slave dynasty 1206 से लेके 1290 तक जो है वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभालती है. इसके बाद you will see खलजीज in the Sultanate of Delhi. Next question: which ruler established the Grand Trunk Road? या which of the following established the Grand Trunk Road? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बाबर और शेर शाह सुर. So this Grand Trunk Road was established by Sher Shah Sur and Britishers named as what as Grand Trunk Road because it used to run from Lahore till Calcutta, and when seen in map it was like what? It was like the trunk of elephant, so that is why it was called as Grand Trunk Road. It is one of the longest national highways of India also right now. So you have to comment right now which national highway covers the Grand Trunk Road in the comment box section. Okay. And during the time of Sher Shah Suri, it was known as Sadke-Azam. What was it known as? Sadke-Azam. चलिए, so अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. यार अगला सवाल: the policy of Sulh Kul was adopted by which ruler? Which ruler adopted the policy of Sulh Kul? बाबर, अकबर, शाहजहां और हुमायूं. तो ये जो सुलह कुल की पॉलिसी है इसका लेना रिलीजन से है. किससे है? रिलीजन से. अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था. यह एस्टैब्लिश इबादत खाना. इन दिस इबादत खाना he used to have religious discourses. What he used to have? What? Religious discussions with various religion chiefs. है ना? उसी पॉलिसी को सुलह कुल कहा गया और फिर रिजल्टेंट ये रहा the establishment of Zill-e-Ilahi, which was done by whom? By Akbar. It was also a code of conduct very similar to the Ashoka's Dhamma. तो वैसे ही Zill-e-Ilahi का establishment किया था किसने? किसने किया था? तो आंसर इज अकबर. तो रिजल्टेंट ये था. तो सुलह कुल की पॉलिसी अकबर की है. लेना देना रिलीजन से है. ये बात याद रखिएगा. इतने सारे फैक्ट्स में से कोई भी फैक्ट जो है बन सकता है. तो एक ये फैक्ट्स की रेलगाड़ी जो है आपके सामने आ गई है. चलिए अगला सवाल: Which department was the दीवाने रसालत in the सल्तनत पीरियड? ठीक है, दीवाने रसालत कौन सा डिपार्टमेंट था ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? जुडिशियल, फॉरेन अफेयर्स, डिटेक्टिव और एग्रीकल्चर. तो जो दीवाने रसालत था इट वाज फॉरेन अफेयर्स. ठीक है, इसके अलावा आपको और सारी जो है डिपार्टमेंट, जैसे आपको दीवाने आमिर को ही, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है ड्यूरिंग दी सल्तनत पीरियड, इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं. दीवाने अर्ज, दीवाने मुमालिक, है ना, दीवाने बरीद. तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, दीवाने बंदगान, है ना, तो ये नॉट बरीद, इट्स बरीद. ठीक है, तो ये आपको सारे डिपार्टमेंट्स जो है एक बार जाकर रिवाइज कर लेना है, जिससे ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्या कहते हैं, क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा. और कमेंट बॉक्स में करके बताओ ये जितने भी मैंने बताया ना, इनका आंसर क्या होगा. ठीक है, मैं पर्सनली भी चेक करूंगा उसको. Now next question: who among the following founded the Khalsa? Khalsa Panth या Khalsa, who started Khalsa? Was it Guru Ramdas, Guru Gobind Singh, Arjun Dev और Guru Angad? तो खालसा का लेना देना सिखिज्म से है. ठीक है, and it was established by whom? गुरु गोविंद सिंह. इन्होंने ही फिर 5 केस भी जो है क्या कर दिए थे? मैंडेटरी कर दिए थे फॉर सिक्स, है ना. केस, कृपाण, कंगा, कच्चा,
है ना, तो ये जो है, और कटार, ये 5 केस भी इन्होंने कंपलसरी कर दिए थे। फाउंडर ऑफ सिखिज्म इज गुरु नानक देव, और ये जो है 10th गुरु है, ठीक है, 10th और दी लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म। फिर इन्होंने ही जो है एक लाइन बोली थी कि सब सिक्कन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। आफ्टर गुरु अरविंद सिंह, दी गुरु ग्रंथ साहिब हिमसेल्फ इन इटसेल्फ इज व्हाट, दी गुरु ऑफ सिक्स। ठीक है, उसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं, अमृतधारी और निरंकारी। वो जब हम, वो फिर आप चेक कर लीजिएगा, हु आर अमृतधारी एंड हु आर निरंकारी। फिर अगला सवाल, हु वाज द रिलीजियस टीचर ऑफ शिवाजी, है ना, शिवाजी के रिलीजियस टीचर कौन थे? तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानदेव या रामदास। एक चीज और याद रखना, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे फेमस भक्ति सेंट है ना, ये सारे क्या है, फेमस भक्ति सेंट है। तो ये भी अगर कभी क्या कहते हैं पूछा जाए तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये सारे भक्ति सेंट हैं। और जो इनके रिलीजियस टीचर थे शिवाजी के, दैट वाज समर्थ गुरु रामदास। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार एमपीपीएससी पूछ भी चुका है, आई गेस 16 या 17 के आसपास, शायद जहां तक 16 में पूछा है, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सिंध इन्वेडेड बाय मोहम्मद बिन कासिम? मोहम्मद बिन कासिम पहला इस्लामिक इन्वेडर था इंडिया में, कब इसने इन्वेड किया? 708, 710, 711, 712, है ना। तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया है सिंध को। और ये जो कॉन्क्वेस्ट है ना, ये लिखी हुई किसमें? चचनामा में। चचनामा करके एक बुक है विच मीन्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध, उसमें ये बात लिखी हुई है। ठीक है, अल हज्जाज और जो है उस समय पे जो रूलर था सिंध का, उसके बीच में कुछ एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण अल हज्जाज का कमांडर मोहम्मद बिन कासिम आता है, और ये पहला इन्वेजन होगा कहां? इंडिया में। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ही वो पहला व्यक्ति था जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जजिया या जो रिलीजियस टैक्स होता है इन इस्लाम, वो लागू किया था। ठीक है, चलिए लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, विच सल्तनत रूलर वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक? किसने लाख बख्श का टाइटल लिया है ना? तो लाख बख्श का टाइटल जो है वो किसने लिया है? इट हैज बीन टेकन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिया था लाख बख्श का टाइटल। इसका लिटरल मीनिंग होता है गिवर ऑफ लैक्स। क्या होता है लिटरल मीनिंग? गिवर ऑफ लैक्स या जेनरस डोनर। तो ये बहुत जेनरस डोनर था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला सुल्तान भी था दिल्ली सल्तनत का या स्लेव डायनेस्टी का। 1206 से लेके 1210 तक गद्दी पे रहेगा। और वाइल प्लेइंग चौगान, है ना, चौगान भी याद रखना। चौगान याद ना रहे तो पोलो याद रखना। वाइल प्लेइंग पोलो और वाइल प्लेइंग चौगान, ही डाइड, है ना। इसके अलावा इनमें से एक और व्यक्ति ने टाइटल लिया है, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल लिया था सिकंदरे सानी। इसका सिकंदरे सानी या सेकेंड अलेक्जेंडर का टाइटल लिया था। ठीक है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, इन विच लैंग्वेज वाज कविराज मार्ग कंपोज्ड? है ना, कविराज मार्ग जो है वो अमोघ वर्ष ने लिखी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है क्या है आपके लिए फैक्ट है, अमोघ वर्ष फर्स्ट ने लिखी है ना। और ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी हुई है। कौन सी? आपकी कविराज मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड दी राज राजेश्वर टेम्पल? राज राजेश्वर टेम्पल किसने बिल्ड किया है? राजेंद्र फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, पारांतक वन या इंद्र सेकंड? तो राज राजेश्वर टेम्पल जो है वो राजराज फर्स्ट ने स्टैब्लिश कराया है। और ये राजराज फर्स्ट ये इंपीरियल चोल डायनेस्टी को जो है बिलोंग करते हैं ना। ये जो मिडिवल टाइम पे जो चोलाज आएंगे ये इंपीरियल चोलाज को बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कोर्टियर ऑफ विघ्नेश्वर? विघ्नेश्वर बहुत बड़े स्कॉलर थे और ये किसकी कोर्ट में थे? नरसिम्हदेव वर्मन, अनंत वर्मन, सोमेश्वरा या विक्रमादित्य? सो विघ्नेश्वरा वॉज इन दी कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे एज इट इज। अगला सवाल, हु बिल्ट दी सिरी फोर्ट? सिरी फोर्ट, है ना, सिरी जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असिस्टेंट भी है, जो आपकी लाइक एप्पल के जो डिवाइसेस होते हैं वहां पे एक ये असिस्टेंट होता है, जैसे गूगल असिस्टेंट होता है या जैसे आपका एलेक्सा है ना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो आपका चैप्टर नई यूनिट ऐड हुई है उससे भी कनेक्ट कर लो कि सिरी एप्पल का है ना, एलेक्सा गूगल का है। ठीक है, वैसे ही गूगल हेल्प भी होता है। ठीक, तो ये गूगल असिस्टेंट है ना, एप्पल लाइक एलेक्सा। तो ये सिरी फोर्ट जो है ये किसने बनवाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो सिरी फोर्ट जो है वो किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। जो भी सिरी से जुड़ी हुई बात होगी, है ना, लाइक सिरी फोर्ट हो गया, उसके अलावा जो है ये अलाई मीनार जो है क्या कहते हैं बनवा रहे थे कौन? आपके अलाउद्दीन। अलाई दरवाजा भी बनवाया था इन्होंने।
ठीक है। इसके अलावा सिरी नाम का एक शहर भी बसाया था किसने, आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं विच आर रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और एक और बात, अलाउद्दीन खिलजी का जो असली नाम था वो था अली गुरश। क्या नाम है, अली गुरश। ठीक है, बाद में फिर ये अलाउद्दीन खिलजी हुए। चलिए अगला सवाल, हु गॉट दी तुगलकाबाद सिटी स्टैब्लिश नियर दिल्ली। किसने तुगलकाबाद शहर बसाया था, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या नन ऑफ दीस। तो जो तुगलकाबाद शहर है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजाबाद, है ना, ये सारे शहर जो है बसाए थे। किसने बसाए थे, आपके फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर इन दी मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था, जौना खान। ठीक है, तो ये कनेक्शन है यहां से। तो ये भी आप कनेक्टिविटी में याद रखेंगे। अगर आप ऐसी कनेक्टिविटी बना करके चलेंगे कि अगर आपको दो तीन के बारे में बहुत सारी बातें पता है तो एग्जैक्टली एलिमिनेशन टेक्निक से आप क्वेश्चन वो भी बना लोगे जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे होंगे, है ना। एक बात हमेशा याद रखना कि एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें जो 100 सवाल आएंगे उनमें से 60 सवाल तो आपने कहीं ना कहीं लगाए हुए होंगे, और जो 40 सवाल है यानी जो आपका 60 से लेके 80 तक का संघर्ष है, तो 20 सवाल आपके नॉलेज से ही बनेंगे। और अगर आप 80 सवाल कर रहे हो, 80 क्वेश्चंस पे हो, तो नोबडी कैन स्टॉप योर प्रीलिम्स। सो देयर इज अ नीड टू व्हाट, वास्टन योर नॉलेज। अगर आप अपना नॉलेज वास्ट रखेंगे तो बहुत इजीली पीटी क्लियर कर लेंगे। तो इस चीज पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो, ब्लंट तुक्का ना लगाएं, पहले आप एलिमिनेशन का यूज करें और हो सकता है आपको आंसर बन जाए। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, द रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज स्टैब्लिश बाय रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये किसने, पल्लव डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उन्होंने रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम स्टैब्लिश किया था। बहुत फेमस है रथ टेम्पल। ठीक है, चलो अगला सवाल, विच रूलर रोड पोएम्स अंडर द निकनेम गुलरुखी। गुलरुखी पेन नेम है, और कौन सा रूलर इस नाम से कविताएं लिख रहा था, खिजर खान, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या मुबारक शाह। तो सिकंदर लोदी जो है वो गुलरुखी के नाम से लिख रहे थे। जैसे एक और रूलर है जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर। ये मुगल सल्तनत के लास्ट रूलर थे, तो इनका भी पेन नेम जो है जफर था। जैसे बहुत सारे अगर आप देखते होंगे जो पोएट्स होते हैं या जो आपके शायर होते हैं वो ऐसे पेन नेम यूज करते हैं, जैसे रघुपति सहाय फिराक, है ना, आपके शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये दिनकर टर्म है ना, ये इनका पेन नेम है जिससे ये कविताएं लिखते हैं। ठीक है, और ऐसे ही बहादुर शाह जफर का एक शेर भी बहुत फेमस है कि जब वो लास्ट टाइम पे जब उसको रंगून भेज दिया था तो उसने अपना दुख बयान किया है कि कितना बदनसीब है जफर दफ्न के लिए, तुझे 2 गज जमीन भी ना मिली तेरे कुएं यार में। यानी ही वाज सुल्तान ऑफ इंडिया एंड एट द एंड ऑफ इट ही डिड नॉट गॉट व्हाट, इवन अ 6 फुट ग्रेव इन इंडिया। तो उस चीज को उसने जो है बयान किया है बहादुर शाह जफर ने। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट टू इशू द कॉइन नेम रुपया। रुपया कॉइन सबसे पहले किसने चलाया, बलबन, शेरशाह सुर, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो रुपया कॉइन जो है वो शेरशाह सुर ने चलाया है। इल्तुतमिश के टाइम पे सिल्वर टंका और कॉपर जीतल, ये 2 कॉइन्स चले थे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो कॉपर के कॉइन्स चलवा दिए थे। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट, सिल्वर कॉइन्स। तो लेना देना मोहम्मद बिन तुगलक का भी है, इल्तुतमिश का भी है, शेरशाह का भी है। बलबन का ऐसा कुछ खास लेना देना करेंसी से नहीं है, पर ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसा कोई सवाल बनता है तो वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पस आमीर बहार अमंग द ऑफिसर्स ऑफ द सल्तनत पीरियड वर अपॉइंटेड। आमीर बहार का अपॉइंटमेंट किस लिए हो रहा था, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बेस, मेंटेनेंस ऑफ द मैनेजर ऑफ द रॉयल हंट, कॉरेस्पॉन्डेंस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन एंड चैरिटी। तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर बेस के लिए आमीर बहार का रिक्रूटमेंट होता था। ठीक है, विथ विच साइंस इज द बुक लज्जते सिकंदर शाही रिलेटेड, है ना, आर्किटेक्चर, आयुर्वेद, म्यूजिक और फाइटिंग स्किल्स। तो लज्जते सिकंदर शाही म्यूजिक से रिलेटेड है, और ये बुक पर्शियन लैंग्वेज में है। किसमें है, पर्शियन लैंग्वेज में है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु स्टैब्लिश्ड द अशोकन पिलर्स एट दिल्ली, फिरोज शाह कोटला। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी। तो जो ये पिछले लेक्चर में भी इसका डिस्कशन हुआ था, है ना, वापस से वैसा थोड़ा सा रिपीटेड सा क्वेश्चन है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है शिफ्ट किए थे दिल्ली, जो है दिल्ली मेरठ, है ना, दिल्ली मेरठ का जो है पहले मेरठ में था, दिल्ली से ले आए,
तो ऐसे 2 इंस्क्रिप्शन जिसने ट्रांसफर किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स गॉट दी अतला मस्जिद मॉस्क बिल्ट? अतला मस्जिद मॉस्क किसने अतला मस्जिद किसने बनवाई थी? शाही खान, बलबन, हैदर शाह या इब्राहिम शाह शर्की? तो इब्राहिम शाह शर्की ने जो है अतला मस्जिद जो है बनवाई है। ठीक है, हु इज द क्रिएटर ऑफ हरविलास? हरविलास किसने लिखी है? श्रीनाथ, अमोघ वर्ष, तेनालीराम या देवराय सेकंड? तो हरविलास जो है वो श्रीनाथ ने लिखी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हु कंपोज द पांडुरंग महामात्यम? पांडुरंग महामात्य किसने कंपोज की है? अलसानी, तेनालीराम, कृष्णदेवराय या कंबन? तो तेनालीराम ने जो है पांडुरंग महामात्य लिखी है। तेनालीराम बहुत बड़े स्कॉलर है साउथ इंडिया में, है ना। अष्ट महादिग्गज जो थे कृष्णदेवराय के, क्या थे? अष्ट महादिग्गज। देखो अब यहां पे 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक है अष्ट महादिग्गज, एक है अष्ट प्रधान, है ना, और एक है नवरत्न। ये 3 शब्द इतिहास में आपको बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं। तो अष्ट महादिग्गज कृष्णदेव राय के टाइम पे जो बहुत स्कॉलर लोग थे वो, अष्ट प्रधान द काउंसिल ऑफ शिवाजी, शिवाजी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी उसको उसमें अष्ट प्रधान थे, है ना, या इंपॉर्टेंट पर्संस। नवरत्न जो है वो आपको अकबर के टाइम पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात जो है याद रखिएगा। चलिए अब अगले एक सवाल की ओर बढ़ते हैं, वाई हिंद वॉर वॉज फॉट बिटवीन विच रूलर्स? जयचंद एंड मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, आनंद पाल एंड महमूद गजनवी, बाबर एंड मेदनी राय? किसके बीच में लड़ा गया बैटल ऑफ वाई हिंद? तो बैटल ऑफ वाई हिंद आनंद पाल और महमूद गजनी के बीच में लड़ा गया। आनंद पाल जो है वो हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर है। ठीक है, आनंद पाल और जयपाल 2 लोगों का नाम आएगा, और दोनों जो बैटल ऑफ वाई हिंद है वो आनंद पाल और जयपाल ने ही लड़े हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में जो बैटल हुआ था दैट इज बैटल ऑफ चांदावर। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 बैटल हुए हैं, बैटल ऑफ तराइन 1, बैटल ऑफ तराइन 2। ठीक है, बाबर और मेदनी राय के बीच में क्या हुआ है? बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, चलिए तो ये जो है क्या है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट बैटल्स उनके हिसाब से। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव? पल्लव की कैपिटल क्या थी? कांची, सीधा सा फैक्ट। चलिए अगला सवाल, हु फाउंडेड द बहमनी किंगडम? दाऊद वन, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू? तो अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू ने बहमनी किंगडम की स्टैब्लिशमेंट की है। चलिए, हु बिल्ड द फेमस गोल गुंबज ऑफ बीजापुर? मलिक अहमद, मोहम्मद आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या इमाद शाह? तो गोल गुंबज ऑफ बीजापुर मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया है। ये इनका मौसलम भी है या इनका मकबरा भी है। चलिए अगला सवाल, हु फाउंडेड दी शर्की डायनेस्टी? इब्राहिम शाह, मुबारक शाह, मलिक सरवर या मोहम्मद शाह? तो मलिक सरवर ने जो है क्या शर्की डायनेस्टी ऑफ जौनपुर की स्टैब्लिशमेंट की थी। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड दी विक्ट्री पिलर ऑफ इन चित्तौड़? या इसको विजय स्तंभ भी कहते हैं, वेरी पॉपुलरली इट इज कॉल्ड एज विजय स्तंभ। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। सवाई जयसिंह, मान सिंह, महाराणा प्रताप या राणा कुंभा? तो राणा कुंभा ने जो है विक्ट्री पिलर बनवाया था, ये चित्तौड़ में है। इफ एनीबडी हैज बीन टू चित्तौड़गढ़ फोर्ट, उसने जो है विक्ट्री पिलर देखा होगा। हुआ क्या था कि जो घोरीज थे, जो मालवा में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, उनका बैटल हुआ था राणा कुंभा के साथ। राणा कुंभा ने उनको हरा दिया था, सॉरी खलजीज को, नॉट घोरीज, खलजीज को हरा दिया था। और जो है उसको कॉमरेट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए राणा कुंभा ने जो है विक्ट्री पिलर का एस्टैब्लिशमेंट चित्तौड़ में करवाया है। हु फाउंडेड दी खिलजी डायनेस्टी इन मालवा? बाज बहादुर, गयासुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी या होशंग शाह? तो महमूद खिलजी ने जो है मालवा में स्टैब्लिशमेंट की है खिलजी डायनेस्टी की। हु इज द ऑथर ऑफ शाहनामा? शाहनामा किताब किसने लिखी है? आमिर खुसरो, इब्न बतूता, उत्बी या फिरदौजी? तो शाहनामा जो है किसने लिखी है? फिरदौजी ने लिखी है। आमिर खुसरो को तोते हिंद भी कहते हैं, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। आमिर खुसरो ने बहुत सारी, रानी देवल, नू सिपिर, है ना, लैला मजनू, नंबर ऑफ बुक्स। इब्न बतूता ने रहला लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इब्न बतूता वॉज अ ट्रेवलर ऑफ विच कंट्री? इटली, मोरक्को, स्पेन, पोर्टुगल? इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का ट्रेवलर था,
और बाद में दिल्ली का काजी भी बन जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये आया था इब्न बतूता। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भक्ति मूवमेंट, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द भक्ति मूवमेंट इन आसम? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकरदेव या शंकराचार्य? किसने जो है भक्ति मूवमेंट को असम में पॉपुलराइज किया? तो दैट इज व्हाट, शंकरदेव। और याद रखना कि शंकराचार्य वही है जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की है इंडिया में, 4 डिफरेंट मठ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नैनार इज रिलेटेड टू, नैनार किससे रिलेटेड है? शैवाइट सेंट, सूफी सेंट, वैष्णव सेंट या ऑल ऑफ द अबव? तो नैनार्स आर शैवाइट्स। ठीक है, तो साउथ इंडिया में जब आपका भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ तो 2 तरह के सेंट्स थे बेसिकली स्टार्ट करने वाले, एक थे नैनार और एक थे अलवार। तो नैनार शैवाइट्स हैं, अलवार्स क्या है, वैष्णवाइट्स हैं। चलिए, इन विच ईयर वॉज गुरु नानक बॉर्न? गुरु नानक कौन है? फाउंडर ऑफ सिखिज्म। 1469, 1569, 1470, 1465। तो ये 1469 में इनका बर्थ हुआ, गुरु नानक देव जी का, है ना। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, आज की डेट में पाकिस्तान में आता है। ठीक है, और ये बाबर के कॉन्टेम्पररी हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत भी देखा था, ये भी एक स्टोरी चलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनसबदारी सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई विच एम्परर? किसने मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसको स्टार्ट किया है अकबर ने। मनसबदारी सिस्टम जो है ये गवर्नेंस का एक सिस्टम है। ठीक है, जिसमें जो है 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक जात और एक सवार। ठीक है, आप जात जो है वो आपकी रैंक होती है, और सवार जो होते हैं वो नंबर ऑफ कैवलरी यू कैन मेंटेन। तो जात के हिसाब से जो है वो सवार हुआ करते थे। और ये इंपॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं, फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन जो था अकबर का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था किसका, मनसबदार्स का। ये हेरिडिटरी नहीं हुआ करता था, है ना, और इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते रहते थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हुमायूंनामा वॉज कंपोज बाय, हुमायूंनामा एक बुक है, किसने कंपोज की है? गुलबदन बानो बेगम, रोशन आरा बेगम, मुमताज या जहां आरा? तो ये गुलबदन बानो बेगम ने कंपोज की है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम्स का, अक्सर आता रहता है। वेयर इज बीबी का मकबरा? लाहौर, आगरा, औरंगाबाद या फतेहपुर सीकरी? बीबी का मकबरा इज इन औरंगाबाद, और यह बनवाया था औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, फॉर हिज वाइफ रबिया उद दुर्रानी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हुज ट्रांसलेशन इज द बुक अनवर सुहेली? ठीक है, अनवर सुहेली किसका ट्रांसलेशन है? पंचतंत्र, आयुर्वेद, सामवेद या रामायण? ये इस साल के मेंस में भी सवाल आया है कि अनवर सुहेली किसका ट्रांसलेशन है। तो दिस इज ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र लिखिए विष्णु शर्मा शास्त्री ने। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेयर वॉज द मोती मस्जिद बिल्ड बाई शाहजहां? आगरा, अमरकोट, फतेहपुर सीकरी या दिल्ली? सीधा फैक्ट है, आगरा में जो है मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवंत वॉज द फेमस पेंटर ऑफ हुज कोर्ट? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या हुमायूं? सो दसवंत वॉज द फेमस पेंटर ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर। ठीक है, फिर वेयर इज द टॉम ऑफ इत्मादुद्दौला? दिल्ली, लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी? इत्मादुद्दौला का टॉम कहां है? आगरा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ जरी कलम बाय अकबर? अब्दुल समद, मोहम्मद हुसैन, मंसूर या अब्दुल हसन? तो जो जरी कलम का टाइटल है वो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया गया है। ही इज अ वेरी फेमस पेंटर। और श्री कलम का टाइटल जो है वो अब्दुल समद को मिला था। तो ये 2 फैक्ट्स हैं जिसको आप याद रखेंगे। ठीक है, मंसूर भी पेंटर है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंफो इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द आमिल्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? आमिल्स कौन थे ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? मिलिट्री चीफ, जस्टिस चीफ, रेवेन्यू ऑफिसर या नन ऑफ दीज? तो आमिल्स वर व्हाट? रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट सवाल। इन विच ईयर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज डन? 1560, 1665, 1666, 1565? तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में हुई है बिटवीन मिर्जा राजा जयसिंह एंड शिवाजी। और शिवाजी इसके बाद ही रेडी हुए थे टू कम टू मीट हुम? औरंगजेब। और इसके बाद ही क्या कहते हैं वो फिर वहां से भागकर भी आए थे और वापस अपना किंगडम स्टैब्लिश कराया था। और इसी ट्रीटी के तहत बहुत सारे फोर्ट्स भी जो है दे दिए थे किसने? शिवाजी ने टू दी मुगल्स। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। एक और ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, वो मॉडर्न हिस्ट्री में आती है, कहां है? कमेंट करके बताओ।
चलो अगला क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट मुगल टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन? अकबर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, जहांगीर शाह और मोहम्मद शाह? पीकॉक थ्रोन या तख्ते तौस? तो मोहम्मद शाह इज व्हाट द लास्ट रूलर टू सिट ऑन दी पिकॉक थ्रोन, है ना। पिकॉक थ्रोन शाहजहां ने बनवाई थी और 1739 में जब नादिर शाह दुर्रानी ने जो है क्या किया था, अटैक किया था, तो ये अपने साथ लेकर के चला गया था पिकॉक थ्रोन, ठीक है। और इसी पिकॉक थ्रोन में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, ये भी एक फैक्ट बन सकता है, ठीक है। फिलहाल ये कोहिनूर हीरा ब्रिटिश म्यूजियम में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, टैक्सेस नेम्ड चौथ एंड सरदेशमुखी वर इम्पोज्ड बाय शिवाजी, राजाराम, बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव? तो शिवाजी ने इम्पोज किया था चौथ और सरदेशमुखी। तो चौथ जो है ये 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस था, ठीक है, और सरदेशमुखी एडिशनल 10% टैक्स था, ठीक है। तो मराठाओं से बच के रहना है तो 1/4 आपको टैक्स देना पड़ेगा ताकि वो अटैक न करे, दैट इज चौथ। और जिस इलाके को मराठा अपना समझते हैं वहां से वो एडिशनल 10% का टैक्स दे रहे थे, दैट वाज सरदेशमुखी। तो ये चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्सेशन सिस्टम है ये किसका है? ये मराठास का है, ठीक है। चलिए तो ये थे दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी रोजगार निर्माण सीरीज, है ना। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. Till then, thank you everyone and best of luck.